دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ کراچی گڈز کیئر ایسوسی ایشن میں 8 اگست کی ملک گیر ہڑتال پر اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ متعدد پینلز کے چیئرمینز اور ایگزیکٹو ممبران نے ہڑتال سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے کہا صدر ملک شیر خان نے مشاورت کے بغیر فیصلہ کیا ہے، جبکہ صدر نے اختلافات کا اعتراف کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ چند ارکان ناراض ہیں مگر انہیں منا لیا جائے گا۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ متعدد پینلز کے چیئرمینز اور ایگزیکٹو ممبران نے ہڑتال سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے کہا صدر ملک شیر خان نے مشاورت کے بغیر فیصلہ کیا ہے، جبکہ صدر نے اختلافات کا اعتراف کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ چند ارکان ناراض ہیں مگر انہیں منا لیا جائے گا۔ گڈز کیئر ایسوسی ایشن میں ملک گیر ہڑتال پر پھوٹ پڑ گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں کاوش محمد سے۔ جی کاوش، یہ بتائیے گا کہ ہڑتال کے فیصلے پر گڈز کیئر ایسوسی ایشن 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے 8 اگست کی گڈز ٹرانسپورٹرز کی ملک کی ہڑتال کا معاملہ ہے، اور اب اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ کراچی گڈز کیئر ایسوسی ایشن میں اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں۔ ایک جانب متعدد پینلز کے چیئرمین اور ایگزیکٹو ممبران نے ہڑتال سے لا تعلقی کر دی ہے، تو وہیں دوسری جانب اب دیکھ رہے ہیں کہ ملک شیر خان نے بھی تنظیم کے اندر اختلافات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ چند لوگ ناراض ہیں تاہم انہیں جلد منا لیا جائے گا۔ صدر ملک شیر خان جو کراچی گڈز کیئر ایسوسی ایشن کو دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہڑتال کا فیصلہ ارکان کی مشاورت سے کیا ہے اور 8 اگست کی ملک کی ہڑتال ہر صورت ہوگی۔ تاہم دوسری جانب دیکھیں کہ جو ناراض ارکان ہیں ان کا موقف ہے کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، اعتماد میں نہیں لیا گیا اور بغیر مشاورت کے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے، اسی لیے یہ فیصلہ صدر کا ذاتی ہے اور گڈز کیئر ایسوسی ایشن کا سے کوئی تعلق نہیں۔ ہڑتال کی مخالفت کرنے والوں میں کئی پینل ہیں، جس میں اگر ذکر کیا جائے چیئرمین یونائٹڈ گروپ آف گڈز ٹرانسپورٹرز نور خان نیازی، انہوں نے بھی ہڑتال کی لا تعلقی کر دی ہے۔ اسی کے ساتھ چیئرمین عوامی ٹرانسپورٹ ونگ چودھری محمد یحییٰ، چیئرمین گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد پینل ساجد آئین، چیئرمین پاکستان ویژن ٹرانسپورٹ پینل ملک شیر زمان، چیئرمین ایس این ایس پینل رانا اسلم اور چیئرمین خالد خان نے بھی ہڑتال سے لا تعلقی کر دی ہے۔ ناراض رہنماؤں نے سٹی 21 سے بات کی اور بتایا کہ موجودہ جنگی اور معاشی حالات میں حکومت غیر معمولی حالات سے گزر رہی ہے، ایسے میں غیر ضروری ہڑتال مسائل کا حل نہیں۔ ناراض اراکین کا کہنا ہے کہ دسمبر کی ہڑتال سے بھی ٹرانسپورٹرز کو کوئی خاطر کا فائدہ نہیں ہوا تھا۔ آج ہماری چیئرمین گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد منیر ساجد آئین سے بھی بات ہوئی ہے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ 13 اگست کو کراچی گڈز کیئر ایسوسی ایشن کی جنرل باڈی کا اجلاس ہونا ہے، جس میں صدر سمیت موجودہ کابینہ کی آئینی مدت ختم ہو جائے گی۔ انتخابات سے قبل ہڑتال کا اعلان کسی صورت مناسب نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو ناراض اراکین ہیں یا جو ناراض پینل ہے انہوں نے اس ہڑتال سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ صدر نے اختلافات کا اعتراف کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ چند ارکان ناراض ہیں مگر انہیں منا لیا جائے گا، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے اس میں؟ دیکھیں گزشتہ روز مختلف گڈز ٹرانسپورٹ تنظیموں نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں ہڑتال کا اعلان کیا تھا۔ اسی پریس کانفرنس میں کراچی گڈز کیئر ایسوسی ایشن کے صدر ملک شیر خان بھی تھے۔ اب دیکھیں جب جو بھی اس طرح کی ایسوسیشن ہوتی ہیں جو جن کے نظم و ضبط ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، تو ان کی کیبنٹ بھی ہوتی ہے، کابینہ بھی ہوتی ہے، یہ تو وہ ہر قسم کے فیصلے میں ان سے مشاورت کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ اس ہڑتال کے اعلان کے بعد جو کراچی گڈز کیئر ایسوسی ایشن کی کابینہ یعنی کہ صدر ملک شیر خان کی قیادت میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، جو 15 رکنی ایگزیکٹو کابینہ ہیں، اس نے ملک شیر خان کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صدر کے فیصلے کو نہیں مانتے، اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ہم سے مشاورت نہیں ہے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس ہڑتال سے 10 یا 12 دن قبل بھی کراچی گڈز کیئر ایسوسی ایشن میں ایک اجلاس ہوا تھا، جس میں کابینہ کو اعتماد میں لیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ 2 دن بعد اگر مطالبات تسلیم نہ ہو گئے تو ہم ہڑتال پہ چلے جائیں گے، لیکن وہ 48 گھنٹے گزر گئے، اس کے کئی دن گزر جانے کے بعد اچانک ہڑتال کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ تو اس پر جو کراچی گڈز کیئر ایسوسی ایشن کے ارکان ہیں، جو ایگزیکٹو ممبران ہیں 15، اس میں سے بیشتر جو ہیں وہ ناراض ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس ہڑتال سے لا تعلق کی، اور یہی اس کو دیکھنے کے اس ہڑتال کو کامیاب بنانے کے لیے ملک شیر خان نے بھی یقیناً اس صورتحال کا نوٹس بھی لیا اور کراچی گڈز کیئر ایسوسی ایشن میں کابینہ کے جو ارکان ہیں ان کو بلایا بھی گیا، ان کو منانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ میں بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ یقین دہانی کے بعد مان جائے، لیکن ممبران تو مان جائیں گے، لیکن جو مختلف پینل ہیں ان کو کس طریقے سے ہڑتال میں لایا جاتا ہے یہ یقیناً ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جی شکریہ اپڈیٹ کے لیے۔
चीफ सेक्रेटरी सिंध की हिदायत पर कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत फ्लोर मिल्स मालिकान का अहम इजलास। शहर में आटे की कीमत में कमी, एक्स मिल रेट 133 रुपए से कम होकर 130 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि चीफ सेक्रेटरी सिंध की हिदायत पर कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत फ्लोर मिल्स मालिकान का अहम इजलास। शहर में आटे की कीमत में कमी, एक्स मिल रेट 133 रुपए से कम होकर 130 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। अपडेट करते चलें कि चीफ सेक्रेटरी सिंध की हिदायत पर कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेरे सदारत फ्लोर मिल्स मालिकान का अहम इजलास हुआ है। शहर में आटे की कीमत में कमी, एक्स मिल रेट 133 रुपए से कम होकर 130 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। अपडेट करते चलें कि चीफ सेक्रेटरी सिंध की हिदायत पर कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेरे सदारत फ्लोर मिल्स मालिकान का अहम इजलास हुआ है। अंदरून सिंध से गंदम की फराहमी बेहतर होते हुए आटे की कीमत 125 रुपए फी किलो तक लाने की कोशिश की जाएगी। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि चीफ सेक्रेटरी सिंध की हिदायत पर कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत फ्लोर मिल्स मालिकान का अहम इजलास हुआ है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी से चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर की मुलाकात। आला तालीम, तहकीक, मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ पर जामे ताउन पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। आपको एक बार फिर अपडेट करें, गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी से चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर की मुलाकात। मजीद जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, ये बताइएगा कि गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी और चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर की मुलाकात हुई है और ये कितनी अहमियत की हामिल है? बिल्कुल, देखें, आला तालीम के हवाले से अगर बात की जाए तो ये जो मुलाकात है इंतहाई अहमियत की हामिल है। आला तालीम, तहकीक, मुस्लिम ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ पर जाम ताउन पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी ने कहा कि मेयारी आला तालीम और तहकीक कौमी तरक्की की बुनियाद है, जबकि मुस्लिम ज़हानत, साइबर सिक्योरिटी और जदीद उलूम को निसाब का हिस्सा बनाना वक्त की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध बोले कि नौजवानों को आलमी मेयार की तालीम और जदीद महारतों से आरास्ता कराना नागुज़ीर है। जबकि चेयरमैन HSC नियाज अहमद ने कहा कि जामियात में तहकीक, डिजिटल लर्निंग और मेयार तालीम के फ़रोग़ के लिए इस्लाहात जारी है, जबकि जामियात और सनत के दरमियान रवाबित मजबूत बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। तहकीक की तिजारती इस्तेमाल, स्टार्टअप कल्चर और इनक्यूबेशन सेंटर के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। चेयरमैन HSC ने आला तालीम और इदारों को आलमी मेयार के मुताबिक मजबूत बनाने के लिए मुतादिद इक़दामात जारी रखने के हवाले से ब्रीफिंग दी, जबकि वफाकी HSC और जामियात के इश्तराक से नौजवानों के लिए आलमी मेयार के तालीम व तहकीक की मौके पैदा किए जाएंगे। चेयरमैन HSC का ये कहना था। जी ज़ुबैर राशिद, आप हमारे साथ रहिएगा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सेंट पैट्रिक हाई स्कूल कराची में चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर सबील का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदा करबला की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना है और इंसानियत की खिदमत, रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के पैगाम को फ़रोग़ देना है। आपको अपडेट करें कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर सबील का एहतमाम किया गया है, जिसका मकसद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदा करबला की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करना और इंसानियत की खिदमत, रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के पैगाम को फ़रोग़ देना है। मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखें, सेंट पैट्रिक हाई स्कूल में चेहले में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर सबील का एहतमाम किया गया। राहगीरों, मुकामी अफराद में ठंडे पानी और मशरूबात तकसीम किए गए। सबील का मकसद शोहदा करबला को खिराज अकीदत और खिदमत इंसानियत का पैगाम देना था। जबकि इस मौके पर फादर मारियो रॉड्रिगेज ने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सच्चाई, इंसाफ, बहादुरी, इंसानी वक़ार के आलमगीर अलामत हैं। सबील के जरिए अमन, बाहमी एहतराम, इत्तेहाद और खिदमत इंसानियत को फ़रोग़ देना चाहते हैं। जबकि इस मौके पर फादर मारियो रॉड्रिगेज ने यह भी कहा कि सेंट पैट्रिक हाई स्कूल की 165 साल रिवायत इक़दार पर मबनी तालीम से जुड़ी हुई है। इंसानियत की खिदमत तलबा की तरबियत का अहम हिस्सा है। जबकि असातिज़ा, तलबा और अमले ने सबील में रज़ाकाराना खिदमत अंजाम दी। तकरीब में बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी, समाजी यकजहती, इंसानी दोस्ती के जज्बे को उजागर किया गया। जबकि सेंट पैट्रिक हाई स्कूल तालीमी मेयार के साथ खिदमत खल्क़ व मुस्बत इक़दार के फ़रोग़ के मिशन पर कारबंद है। प्रिंसिपल फादर मारियो का ये कहना था। जी शुक्रिया अपडेट के लिए।
दूसरी जानिब आपको बताएं कि गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी की वफाकी वजीर सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से मुलाकात। सिंध में अर्बन फॉरेस्ट और खुसूसी शजरकारी मुहिम शुरू करने पर इत्तफाक किया गया है। मजीद आपके एक बार फिर अपडेट करें। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी की वफाकी वजीर सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से मुलाकात। सिंध में अर्बन फॉरेस्ट और खुसूसी शजरकारी मुहिम शुरू करने पर इत्तेफाक भी किया गया है। अपडेट करें कि गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी की वफाकी वजीर सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से मुलाकात हुई है। मुलाकात में सिंध में अर्बन फॉरेस्ट और खुसूसी शजरकारी मुहिम शुरू करने पर इत्तेफाक भी किया गया है। आपको अपडेट करें कि सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से मोहम्मद निहाल हाशमी की मुलाकात हुई है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी की वफाकी वजीर सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से मुलाकात हुई है। सिंध में अर्बन फॉरेस्ट और खुसूसी शजरकारी मुहिम शुरू करने पर इत्तेफाक भी किया गया है। अपडेट करें कि मुलाकात में सिंध में अर्बन फॉरेस्ट और खुसूसी शजरकारी मुहिम शुरू करने पर इत्तेफाक भी किया गया है। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी की वफाकी वजीर सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से मुलाकात। सिंध में अर्बन फॉरेस्ट और खुसूसी शजरकारी मुहिम शुरू करने पर इत्तेफाक भी किया गया है। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी की वफाकी वजीर सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से मुलाकात हुई है। मुलाकात में सिंध में अर्बन फॉरेस्ट और खुसूसी शजरकारी मुहिम शुरू करने पर इत्तेफाक भी किया गया है। सिंध भर में अर्बन फॉरेस्ट ग्रीन इनिशिएटिव का आगाज भी किया गया है। आपको एक बार फिर अपडेट करें। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी की वफाकी वजीर सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से मुलाकात हुई है। सिंध में अर्बन फॉरेस्ट और खुसूसी शजरकारी मुहिम शुरू करने पर इत्तेफाक भी किया गया है। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी की वफाकी वजीर सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से मुलाकात हुई है। हमें ज्वाइन किया है खुर्शीद रहमानी ने। जी खुर्शीद, ये बताइएगा कि गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी की वफाकी वजीर सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से मुलाकात हुई है और मुलाकात की बुनियादी वजह क्या है और ये मुलाकात किस अहमियत की हामिल है? गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी से वफाकी वजीर सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई है। मुलाकात में सिंध में अर्बन फॉरेस्ट और खुसूसी शजरकारी मुहिम शुरू करने पर भी इत्तेफाक किया गया है। इसके अलावा सिंध भर में अर्बन फॉरेस्ट ग्रीन इनिशिएटिव का आगाज किया जाएगा। इसी मुलाकात में रेलवे लाइनों के अतराफ अर्बन फॉरेस्ट और ग्रीन कॉरिडोर्स कायम करने की तजवीज भी दी गई है। इस मौके पर गवर्नर सिंह ने कहा है कि मौसमाती तब्दीली से निपटने के लिए विफाक और सूबों के दरमियान मौसम ताउन नागजीर है। गवर्नर हाउस कराची में यौम आज़ादी तकरीबात का आगाज शजरकारी मुहिम से कर दिया गया था। इस हवाले से गवर्नर सिंह ने ये भी कहा कि शजरकारी मुहिम में नौजवानों, तलबा, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी की भरपूर शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी। इस हवाले से वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने गवर्नर हाउस कराची के दौरे और यूनिवर्सिटी तलबा से मौसमी तब्दीली पर खुसूसी लेक्चर देने की दावत भी कबूल कर ली है। इस हवाले से वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने गवर्नर सिंह सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी की अवामी खदमात और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए काविशों को सराहा। जबकि वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि कौमी मफाद में इत्तेहाद, दायमी ताउन और इत्तेफाक राय ही तरक्की और खुशहाली की जमानत है। जी शुक्रिया अपडेट के लिए। आगे बढ़कर आपको बताया कि यूरोपियन सकाफत को कराची में फरोग देने का अज़्म। अलायंस फ्रांसिस कराची और गोयटे इंस्टीट्यूट कराची के दरमियान MOU पर दस्तखत। काउंसिल जनरल फ्रांस और जर्मन काउंसिल जनरल की मौजूदगी में मुआहिदा तय पा गया है। अपडेट करें कि यूरोपियन सकाफत को कराची में फरोग देने का अज़्म। अलायंस फ्रांसिस कराची और गोयटे इंस्टीट्यूट कराची के दरमियान MOU पर दस्तखत हो गए हैं। हमें ज्वाइन किया है सैयद जुबैर राशिद ने। जी सैयद जुबैर राशिद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल देखें, यूरोपियन सकाफत को कराची में फरोग देने का आज़म अलियंस फ्रांसिस कराची और गोयटे इंस्टीट्यूट कराची के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब मुनक़िद की गई है। फ्रांसीसी कौंसल जनरल एलेक्सी शाह तख्तनेस्की और जर्मन कौंसल जनरल थॉमस शॉज की मौजूदगी में ये मुआहिदा तय पाया गया, जिसमें डायरेक्टर अलियंस फ्रांसिस कराची मिस्टर एमानुएल ब्योरिक और डायरेक्टर गोयटे इंस्टीट्यूट एंड्रिया शिकोफर ने दस्तखत किए। अलियंस फ्रांसिस कराची में नए मुश्तरका सकाफती मरकज की तामीर शुरू कर दी गई है, जबकि मंसूबे के तहत जदीद तालीमी और सकाफती सहूलियात फराहम की जाएंगी। नई इमारत में जर्मन जबान की क्लासेस और सकाफती सरगर्मियों का इनेकाद होगा। मंसूबा फ्रांसीसी और जर्मन सकाफती ताउन को मजीद मजबूत बनाएगा। जबकि इस मौके पर डायरेक्टर फ्रेंच कल्चर सेंटर एमानुएल ब्योरिक ने कहा कि गोयटे इंस्टीट्यूट और अलियंस फ्रांसिस पाकिस्तान में दोस्ती की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। MOU यूरोपीय सकाफती ताउन के
फरोग की जानिब एक अहम पेशरफ्त है, मैनुअल ब्यूरिक का ये कहना था। जबकि अलियांस फ्रांसिस कराची में फ्रांसीसी जबान के कोर्सेज और आर्ट प्रोग्राम में मजीद वसअत लाई जाएगी। जबकि इस मौके पर डायरेक्टर कोईटे इंस्टीट्यूट एंड्रियाज शिकोफर ने कहा कि मुश्तरका मंसूबा कराची में सकाफती व तालीमी रवाबित के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। जी शुक्रिया अपडेट के लिए ज़ुबैर राशिद। पाकिस्तान के 7 नामवर मुसव्विरों को खराज तहसीन पेश किया जाए। स्टूडियो सराय मोहम्मद में तसद्दुक हुसैन बहाब, जाफर मशकूर, रजा जिमी, इंजीनियर समेत दिगर मुसव्विरों के फन पारे नुमाइश में पेश करके उनके फ़न का एतराफ़ करते हुए खराज तहसीन पेश किया जाएगा। नुमाइश की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हैं। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। फ़नून लतीफ़ा से दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक बड़ी बात ये भी है कि पाकिस्तान के नामवर मुसव्विरों को ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। ना कि सिर्फ एक मुसव्विर बल्कि 5 से 6 मुसव्विर ऐसे हैं जिनकी तख्लीक़ात को एक नुमाइश के ज़रिए पेश किया जा रहा है। और कौन कौन से मुसव्विर इसमें शामिल हैं और इस नुमाइश का क्या नाम है, तो आइए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नासिर जंजुआ साहब जो कि इस नुमाइश को क्यूरेट कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, इस नुमाइश की जो तैयारियां हैं कितनी मुकम्मल हो चुकी हैं? जी, इसकी इनाग्रेशन कल है 5:30 बजे इंशाल्लाह। और ये 7 मास्टर्स हैं। 2 of them are living, 5 of them have expired and they were masters of this country माशाल्लाह। एंड उनमें क्या कहते हैं, कुछ हमने फिर जो एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं लिविंग उन्हें भी शामिल किया है। और ये इनॉग्रल शो होगा इस गैलरी का नाम है स्टूडियो सराय। एंड आई थिंक इट विल बी एन एडिशन टू द आर्ट सीन ऑफ कराची। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब नाम बताइएगा कौन कौन से ऐसे हमारे मुल्क के मुसव्विर हैं जिन्हें ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है, जिनका काम आपने शामिल किया? एक तो जिमी साहब हैं और जिमी हाली इंजीनियर साहब हैं जी, मशकूर रज़ा साहब हैं, अहमद खान साहब हैं, इकबाल हुसैन साहब हैं, तसद्दुक सुहेल साहब हैं और जुल्फ़िकार जुल्फ़ी साहब हैं जी। बिल्कुल जी। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर नासिर जंजुआ साहब, जहां पर इस वक्त ये आर्ट गैलरी स्टूडियो सराय के नाम से है और जिसका बाकायदा तौर पर कल इफ्तिताह किया जाएगा। इस नुमाइश पे ना कि सिर्फ मुल्क के नामवर मुसव्विरों का काम शोकेस किया जाएगा बल्कि उभरते हुए नए मुसव्विरों का काम भी इस नुमाइश का हिस्सा होगा। नुमाइश का मकसद पाकिस्तानी आर्ट को दुनिया भर में रोशनास करवाने के साथ साथ नौजवान नस्ल को अपने फ़न से भी जोड़ना है।